Hi guys, once again this is Jacob John and today with me is Anjali Pushpan. Anjali and me, we both are going to present a role play. And of course, you guys are so familiar with the role plays. You might have seen a lot of role plays in YouTube and all other social platforms. Role plays are most common. They are very common in OET, which stands for Occupational English Test version 2.0, isn't it? Yes, sir. Yes, of course. Alright, so what I want to do this time is like we both are having a discussion about a role play in which a 5-year-old child undergoes myringotomy. I guess that's very quite common, of course, isn't it? Yes, sir. Yes, You're right. it is. So this particular role play is not like an examiner, student or candidate role play, but still we're going to have a discussion and uske saath I am going to tell you कि किस तरीके से ये role play करना है. So I guess this will be both beneficial for people who are speaking English as well as those who are taking test and who are from Hindi background. So let's see how far we can go with this. So shall we start? Of course, sir. Alright, fine. So in this particular role play, I'm going to be the father and my name is Jacob, of course. I'm not going to change my name whatsoever. And Anjali is going to enact the role of a nurse. So we are actually going to see how the role play is and what all are there in the role plays. Of course, the role play card is divided into 3 parts or 3 sections. Could you like to just say what all are the sections just for them? The first section is setting and followed by background information, then the tasks. Alright, so a role play card is divided into setting, a background information, a very small paragraph which is called a scenario, and task. There will be a couple of tasks, a number of tasks. It varies, sometimes 6, sometimes 4, sometimes 12, sometimes 14. It just goes on. So चलो देखते हैं किस तरीके से ये role play हम कर सकते हैं, ठीक है? Alright, so would you like to please go through the setting and tell them a little bit about what the setting is? Okay, sir. So the setting is a recovery room. Alright, तो यहाँ पे सेटिंग रिकवरी रूम का दे रखा है. तो जैसे मैंने पहले बोला है, रोल प्ले का 3 तरीके से डिवाइड करके रखा हुआ है. सेटिंग पहले है, उसके बाद सिनेरियो है, जो छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है वो सिनेरियो में, और उस सिनेरियो में से इस तरीके के इंफॉर्मेशंस मिलते हैं कि जहां आपको अपना रोल प्ले स्टार्ट करना होता है. किसके बारे में आप बोल रहे हो, किस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, आपका रोल वहां पे क्या है. फॉर इंस्टेंस लाइक आर यू द नर्स, आप नर्स हो, आप रजिस्टर्ड नर्स हो, या आप कोई नर्सिंग असिस्टेंट हो, या आप कोई नर्स मैनेजर हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नर्स हो, मतलब उस हिसाब का रोल है ना. यस, सो दैट्स अबाउट द सिनेरियो. और उसके बाद टास्क, किस तरीके से आपको अपनी बात शुरू करनी है, उस हिसाब से टास्क दे रखा है. तो यहां पे जो दे रखा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम देखते हैं कि ये रोल प्ले किस तरीके से लेके जा सकते हैं, क्योंकि अंजलि यहां पे एक नर्स बनी हुई है और मैं इस 5 साल के बच्चे का बाप बना हुआ हूं जिसको myringotomy नाम की एक सर्जरी करने की जरूरत आन पड़ी है. एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी, मोस्ट ऑफ यू दोस आर वाचिंग दिस, यू मस्ट बी नर्सेस और एनी अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स, सो यू गाइस मस्ट बी नोइंग व्हाट इज अ myringotomy. Myringotomy is a surgical incision or a small operation जहां पे ईयर ड्रम, कान के अंदर का जो छोटा सा पर्दा होता है, ईयर ड्रम में एक छोटा सा इंसिशन, नहीं तो वहां पे एक छोटा सा कट करके अंदर का फ्लूइड निकालने के लिए, या प्रेशर जब बहुत बिल्डअप हो जाता है, बढ़ जाता है तो सुनाई देना कम हो जाता है, तो उस हिसाब से काट के वो प्रेशर कम करने के लिए फ्लूइड को ड्रेन करते हैं. तो वो सर्जरी के बाद, वो सर्जरी होने के बाद इस 5 साल के बच्चे को रिकवरी रूम में लेके आके रखा हुआ है. पहले आईसीयू, उसके बाद रिकवरी रूम, फिर वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, नहीं तो वाइस वर्सा. समटाइम्स रिकवरी रूम फर्स्ट and after that ICU if the case is intense, right? Sometimes it happens like that also. And after that, that particular department or area. Alright, so let's have a look at the task. We'll just see what it is, how it is, और उसके बाद हम शुरू करते हैं डिस्कशन. ठीक है, तो यहाँ पे पहला टास्क जो है, जो नर्स बनी हुई है अंजलि, शी इज गोइंग टू रीड दिस आउट. ओके, लेट्स सी. We all have gone digital, right? So of course, mobile is what we have right now. No need of hard copy. We'll just have a look at it. Okay. So the first task is tell him or her that the surgery is completed. And in brackets, child is under observation for 1 hour and perfectly all right. So here, the task that the nurse has got is like, tell him or her, but since she's speaking to the father, she's speaking to me. मुझसे बात करे क्योंकि मैं बच्चे का बाप बना हुआ यहाँ पे. और उसके बाद सर्जरी, myringotomy नाम का सर्जरी जो करा हुआ था बच्चे पे, वो कंप्लीट हो चुका है. बच्चा बिल्कुल सेफ है. रिकवरी रूम में बच्चे को शिफ्ट किया हुआ है.
तो 3 मिनट्स प्रिपरेशन जब मिलता है उस टाइम पे आप पूछ सकते हो कि लड़का है लड़की है, हाउ शुड आई एड्रेस योर चाइल्ड, बिकॉज इट्स ओनली गिवन वेदर इट्स अ सन और अ डॉटर. That's the way that you have to start your speaking. That's all very common and everybody knows about it, but still I'm just brushing it up. तो यहाँ पे as of me, I'm the father over here, so I'll be asking her, for instance, for example, I'll be asking her, nurse, could you please tell me, is my son all right? I'm totally worried about him. नर्स, मुझे बता सकते हो मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि उसकी हालत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है. तो आई एम गोइंग टू आस्क यू, what could be the possible response from your side? Being a nurse, you're trying to console me, she's trying to comfort me, so let us hear from her mouth. So as a nurse, we can say that you being a father, I do pursue your feelings, but try not to be worried. Your son is perfectly all right. His surgery is completed. Now he is under observation in the recovery room. Alright. तो यहाँ पे अंजलि ने बोला कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, सारे मेडिकल प्रिकॉशंस उसके लिए लिया हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक डोंट ट्राई टू मेक द फादर अफ्रेड. इट्स लाइक वो बिल्कुल सेफ है, डॉक्टर्स ने अपना राउंड्स करा हुआ है और उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला है कि उसे अभी रेस्ट की ज़रूरत है, सर्जरी बस कराई हुआ है. तो जब वो देखने के लिए रेडी हो जाएगा या उसका बाप उससे मिलने के लिए रेडी हो जाएगा, तो देयर यू गो, देयर इज अ टाइम फॉर यू टू गो एंड हैव a talk or to go and see your son. By the time अभी के लिए वो recovery room में है. So that is how you ask and answer the first task. Now let's have a look at the second task. The second task over here is convey the reason for restricting the parent to see the child at the present. तो इट हैपन्स लाइक समटाइम्स, कभी कभार छोटा बच्चा है यार, तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स को मतलब बहुत डर लग रहा होगा कि मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं अंदर, isn't it? There's a barrier, there is a restriction. We all are nurses, we know that there are certain protocols to be followed. So फिर भी मुझे डर लग रहा होगा अंदर कि I want to see my son right now. मुझे अपने बच्चे से अभी मिलना है. I have to see him. I don't care what you're saying. जो तुम बोल रहे हो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम्हारी सारी भाषा मुझे समझ में आ रही है, पर फिर भी मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूं. मुझे गाउन पहना दो, टोपी पहना दो, मास्क लगा दो, कुछ भी लगा दो, पर फिर भी मुझे अपने बच्चे से मिलना है. In such a situation, could you please read in the brackets what it is given? Yeah, in bracket it says that hospital policy, drowsy due to anesthesia. All right. तो यहाँ पे आपकी स्पीकिंग को थोड़ा सा हेल्प देने के लिए, to aid your speaking, ब्रैकेट्स पे दे रखा है हॉस्पिटल पॉलिसी. अभी आप नहीं मिल सकते, बट यू हैव टू से, इस तरीके से बोलना है कि जिससे मतलब बच्चे का बाप जो है बिल्कुल गुस्से में ना आ जाए, हाथापाई करने पे ना उतर जाए. तो उस हिसाब से आपको बात करनी है. एंड देयर इज अनदर क्यू गिवन ओवर हियर इज ड्यू टू एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया के कारण आपका बेटा अभी भी नींद में है, वो पूरी तरीके से जगा नहीं है. आप जाके उसे हिलाओगे, गोदी में लेने की कोशिश करोगे, उसे आप बातचीत करने की कोशिश करोगे, बट ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनेस्थीसिया, आधा सोया हुआ है. दिस विल एक्चुअली कॉज हिम मोर हार्म, ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा फायदे की बजाय. So these are the cues that the role card has given you, isn't it? Yes. To actually aid you in speaking. So let me hear from Anjali. When I asked her, I want to meet my son, what is she going to answer? How is she going to answer for this particular task? We can say that I acknowledge your situation, but I'm sorry to say that right now you are not allowed to meet your son because our hospital policy didn't allow anyone to enter into the recovery room because it's a sterile area. And along with that, your son is under drowsiness due to the anesthesia. He needs some more time to get recovered from that. Try to understand the situation. All right. तो यहाँ पे बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, मतलब शी इज़ वेरी क्वाइट ओवर हियर, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं. बार बार मैं जाके पूछ रहा था कि मुझे अपने बेटे से मिलना है, मुझे देखना है. आपने बोला कि मेरा बेटा ठीक है, पर मुझे अपने बेटे से मिलना है, तभी मुझे तसल्ली मिलेगी, चैन मिलेगा. पर फिर भी शी केप्ट हर काम. शी वॉज लाइक टेलिंग हॉस्पिटल प्रोटोकॉल है, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, एनेस्थीसिया के अंडर में है, तो इसलिए उसने अभी अपनी आंखें नहीं खोली. उसे पूरी तरीके से एनेस्थीसिया से रिलीव होने दो, उससे छूटने दो. उसके बाद जब वो अपनी आंख अपने आप खोलेगा, उसे टायर्डनेस बिल्कुल फील नहीं होगा, थकान बिल्कुल
बिल्कुल फील नहीं होगा। तो उसके बाद वो खुद ही बोलेगा कि उसे अपने बाप से मिलना है, या जो भी उसके लिए बाहर है सर्जरी में ले जाने से पहले जिन जिन जनों को उसने देखा है वो खुद ही बोलेगा मुझे इनसे मिलना है, उससे मिलना है। उस टाइम पे आप अपने बेटे से मिल सकते हो। एंड देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी व्हेन द सन वुड बी टेकन टू व्हाट यू से आउट ऑफ द रिकवरी रूम, इफ द कंडीशन इज नॉट सीरियस, आईसीयू में ले जाने की नौबत नहीं आई, जरूरत नहीं आई, तो ही विल बी टेकन टू वार्ड, isn't it? Yes. So when the patient or this child or the son is taken to the ward, of course you can meet him over there. You can add that also just in case if you want. Of course. All right. So that was about the second task. Now moving on, I want you to have a look at your third task. Could you please just read it out for me? Yeah, the third task is this. Reassure that the pain is minimal, and in brackets, IV injections of painkillers followed by oral medicines. Okay. All right. So that is the third task. You have to explain a little bit of IV medications, intravenous medications, particularly pain medications that you have to give the son. And I will be like, nurse, मुझे डर लग रहा है, मेरे बेटे को दर्द हो रहा होगा आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद उसे दर्द हो रहा है, किस तरीके से आप उसे मैनेज कर रहे हो, मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा। आई बी लाइक आस्किंग यू, राइट, हाउ आर यू गोना मैनेज द पेन, बिकॉज एक चोट पहुंच जाए, सर्जरी हो जाए या कोई भी तकलीफ आ जाए, ऑफ कोर्स दर्द तो होगा ही, और उस हिसाब से दवाई देने की तो बहुत ही जरूरत है वहां पे, और वो अव्वल नंबर की प्रायोरिटी है। तो इस हिसाब से आई एम गोना आस्क हर एंड लेट मी सी व्हाट हर आंसर विल बी। So we can say that your thoughts are really sensible. Same like any other surgery, he will also be in pain. But I can assure you, his pain will be minimal because we have already provided him with IV medications which will be followed by oral medicines. So his pain will be minimal. He won't be able to notice it even. All right. तो यहाँ पे इस तरीके से बोला गया है कि मुझे आपने जो भी सोचा है बिल्कुल जायज़ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी के बाद दर्द तो होगा ही, पर हम लोग हैं यहाँ पे देखने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसे कोई भी तरीके की तकलीफ ना हो वो देखने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। दर्द तो होगा ही, ऑफ कोर्स दर्द होगा, पर उतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा क्योंकि दवाई के इन्फ्लुएंस में है, नहीं तो इन दवाइयों के सहारे उसका दर्द हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो सर्जरी हुआ ही है और उसके बाद तो थोड़ी बहुत दर्द की गुंजाइश है, बट डोंट वरी अबाउट इट, इट विल बी मिनिमाइज्ड। और अगर हम अगला टास्क देखें, इफ यू हैविंग अ लुकिंग एट द नेक्स्ट टास्क, वी कैन सी ओवर हियर दैट इट इज रिटन एक्सप्लेन हिज फूड प्लान। फूड प्लान इज रिटन ओवर देयर। माँ बाप का तो बस यही होता है कि बच्चा जितना भी खाए कम ही लगता है उनको, और अगर सर्जरी या हॉस्पिटल की नौबत आ गई तो माय सन इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, माय डॉटर इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, दैट्स समथिंग दैट पेरेंट्स आर ऑलवेज वरीड अबाउट। सो हियर food plan, NPO for 1 hour, then start with a soft diet and we'll move on to normal diet. Alright, so here मैं पूछने जा रहा हूं कि मेरे बेटे के खाने का क्या, सर्जरी हो गया ठीक है, उसके बाद वो खाना कैसे खाएगा, मेरे हाथ से ही खाना खाता है, कोई और उसे नहीं खिला सकता, वो किसी से नहीं खाएगा, अगर उसने खाना नहीं खाया तो वो कमजोर पड़ जाएगा, मैं क्या करूं, कैसे खिलाऊं, कब खिलाऊं, these are the questions that are given in the brackets. It's again helping you to speak, right? Because I am an anxious father right now. Even though my son underwent myringotomy, I have no idea. After the surgery, I want to feed him. How he will eat, what he will eat, who is going to feed him, because I am the only person who is going to feed him and he will only eat from my hands, right? And how he's going to eat the normal diet, how am I supposed to introduce the diet, what is NPO, I cannot understand anything. तो देखते हैं अंजलि इस टास्क का जवाब किस हिसाब से देती है। For that we can say that I realize your frustration, but as per the doctor's order, he is asked nothing to take through his mouth for the initial 1 hour. After that, we can start with a soft diet, which will gradually move to a normal one. Would you like to give me a couple of examples for soft diet? It actually aids in your speaking to get you more scores, you know. You are totally having some sort of a communication with the parent. Yes, soft like fruit juices is one of such a soft diet. All right, jellies, puddings, fruit juices, oatmeal, these are all soft diets, introduction of soft diet. बिकॉज वो इसलिए बोलते हैं सॉफ्ट डाइट इंट्रोड्यूस करने के लिए क्योंकि एनेस्थीसिया के इफेक्ट के बाद 1 घंटा मुंह में कुछ नहीं देना चाहिए बच्चे के, ना पानी ना खाना। क्यों? वॉमिट, देयर आर चांसेस फॉर द चाइल्ड टू वॉमिट, और उसके बाद हो सकता है कि एस्फिक्सेट करे, मतलब ही इज नॉट एट ऑल एबल टू टॉलरेट,
हो सकता है कि उसकी छाती में चला जाए, पेट के अंदर जाने के बजाय खांसी हो, उल्टी हो, ये सब हो सकता है। उसके बाद सॉफ्ट डाइट्स, मतलब एकदम हार्ड नहीं, रूटीन रोटी चपाती ब्रेड नहीं, एकदम सॉफ्ट डाइट, पुडिंग, कर्ड, फ्रूट जूसेस, जेलो, मार्मलेड, ओट मील, थोड़ा सेवइयां, इस तरीके का डाइट थोड़ा सा इंक्रीज करे पहले। क्यों? देयर आर 2 पॉइंट्स एंड देयर आर 2 एस्पेक्ट्स। पहले बच्चा खाना खा सकता है कि नहीं, ये जानने के लिए। उसके बाद चबाने के टाइम पे अगर सख्त खाना हो, चबाने के टाइम पे कान में दर्द होने की गुंजाइश है। एंड ऑफ कोर्स द सर्जरी वाज ऑफ myringotomy, eardrum, isn't it? Yeah. So when you're chewing it too hard, there are chances for ears to ache more. पहले सर्जरी का दर्द है, उसके बाद खाना खाने के चबाने के से और दर्द हो जाएगा तो वो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चा है 5 साल का, रोने लगेगा। तो these are the ways that she's explaining it to me and I'm like, nurse, I can totally understand. Thank you so much for explaining it to me. But still, are you sure that my son is all right? I'm like, मैं फिर पूछ रहा हूँ, आपने जो भी मुझे समझाया है, क्यों पहले 1 घंटा खाना नहीं देना, पानी तक नहीं देना, फिर सॉफ्ट डाइट स्टार्ट करना है, थोड़ा सा शुरू करना है, उसके बाद नॉर्मल डाइट में जा सकते हैं। मुझे सब कुछ समझ में आ गया, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूं कि मेरा बेटा सही सलामत तो है ना, क्योंकि मैं बाहर हूं, मेरा बेटा रिकवरी रूम में है। सो फॉर दैट व्हाट यू विल आंसर? We can assure the parent that this soft diet will be enough for him in that too in his present condition, because that will be enriched with all the nutrients that he requires at the present time. All right, fine. तो मुझे फिर एश्योरेंस दिया जा रहा है, घबराओ मत, डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं यहाँ पे, जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं आपके बच्चे की भलाई के लिए कर रहे हैं, उसके नुकसान के लिए नहीं कर रहे। फिर दोबारा हमेशा एश्योरेंस दिया जा रहा है। Alright, fine. I think, guys, you are totally understanding these tasks. That's why I'm just going bilingual, like in Hindi as well as in English. Anyhow, we'll just tell you what you have to do towards the last of this particular role play card. I'm not wasting any more time. Could you please read on the next task? And we have come to an end of this particular video. Alright. Okay, so the next task is tell him or her that the discharge will be as per the doctor's order. In brackets, 1 to 2 days hospital stay based on progress. Exactly. अब अगला क्वेश्चन मेरे मन में, बाप हूं भाई, क्या करूं, डर लगता है, बच्चे की सर्जरी हो गई है, सब कुछ नर्स से पूछ लिया है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मेरा बच्चा कब डिस्चार्ज होगा। सो दैट इज समथिंग दैट आई एम टोटली वरीड अबाउट व्हेन माय सन इज गोना गेट डिस्चार्ज्ड। आई जस्ट वांट हिम टू टेक होम। मैं अपने घर में ले जाके अपने तरीके से अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ, और उसका पूरा फ्रीडम, उसकी पूरी आज़ादी मुझे चाहिए, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चे को अंदर जाके देख भी नहीं सकता, isn't it? Yes. So if I'm asking like that, how are you going to tell it to me so slowly that I actually fall for their trap telling me like he'll get discharged after 2-3 days? I can really sense your feelings, Mhm. and you can say that I'm not well sure about the discharge. Even though I can say that he needs to stay in the hospital for 1 to 2 days. But the final decision is with the doctor. He will decide on the discharge, and that too based on the progress of the child. Exactly. I can sense your feelings. मैं आपके जज्बातों को समझ सकती हूँ, और उस हिसाब से मुझसे बात कर रही है कि मतलब मेरा जो भी प्रॉब्लम है उन्होंने अपने सर पे ले रखा है नर्स होने के नाते। I can sense your feelings. I can understand your concern. Being a father, of course, I know what you're going through. So these are all called as reassuring sentences or reassuring phrases and whatever it is. But इस तरीके से आपको बात करनी है, मतलब फादर को आपको इस हिसाब से समझाना है कि मैं नर्स हूं, यहाँ पे डिस्चार्ज मेरे हाथ का काम नहीं है, पर फिर भी आपका बेटा 2-3 दिन के लिए सही सलामत रहेगा, और हो सकता है, गुंजाइश है कि 2-3 दिन बाद आपके बेटे की हेल्थ कंडीशन देखने के बाद डॉक्टर उसको डिस्चार्ज दे दे। उसके बाद आप उसे घर ले जाके उसकी पूरी तरीके से खातिरदारी कर सकते हैं, और जस्ट इन केस अगर कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई डाउट हो तो उसे आप वापस हॉस्पिटल में ले आ सकते हैं, और हम यहाँ पे हैं उसकी देखभाल करने के लिए। दैट इज सो कूल फॉर हर टू आंसर लाइक दैट टू मी, सो आई एम गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ रिलीफ. Now we have come to the last task, isn't it? Yes. So this last task is really simple, but it is having a lot of content for you to say. Let's read what it is. So the last task is explain post-discharge care and precautions to take.
वेरी सिंपल, पोस्ट डिस्चार्ज केयर। घर जाने के बाद आपको अपने बेटे का किस तरीके से केयर करना है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, इजंट इट? Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल द चाइल्ड विल बी हैविंग ड्रेसिंग, क्योंकि कान के पर्दे का ऑपरेशन करा हुआ है, तो हो सकता है कान में से थोड़ा पानी आने का चांस हो। 5 साल का बच्चा है, पानी में खेलेगा, कूदेगा, अपने दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा, अपने खिलौनों से खेलेगा, कौन समझाए? आपके हाथ में है, पेरेंट होने के नाते, बाप होने के नाते आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चे की देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो घर ले जाने के बाद किस तरीके से आपको अपने बेटे की देखभाल करनी है, और उसके बाद फॉलो अप, कब हॉस्पिटल में लेके आना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क हर द क्वेश्चन एंड शी इज गोइंग टू रिप्लाई टू मी. All right, nurse, I want to ask, thank you so much for explaining about the discharge procedures to me and when he will get discharged, even though it is not in your hand. All right, so let's have a look at the last task. Thank God we have come to the end. Anyhow guys, explanation बहुत है इसमें, तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस हिसाब से आपको रोल प्ले शुरू करना है, किस हिसाब से आपको बात करनी है, किस हिसाब से नर्स को बात करनी है, किस हिसाब से बाईस्टैंडर या इंटरलॉक्यूटर को बात करनी है, किस हिसाब से जवाब देना है, and everything you will understand. Anyhow, we are about to wind up, so let us see the last task. Here the last task is about post discharge. घर जाने के बाद मैं अपने बेटे की देखभाल किस तरीके से करूं और कब उसे हॉस्पिटल लेके आऊं, isn't it? When should I bring him for a follow-up? So nurse, could you please just tell me? So we can say that make sure that he's following all the prescribed medication and the instructed diet without any fall, which is very much important for a faster recovery. And also we can say that restrict him away from doing vigorous activities and allow him to take adequate rest. Please don't allow any visitors as it may cause infection on your child. And also we can say monitor him that he's not inserting anything into his ear. If you notice any unusual symptoms like mild bleeding, please don't hesitate to bring medical attention to the child immediately. All right, thank you so much. So यहाँ पे नर्स ने मुझे इस हिसाब से बताया है कि आपको घर लेके जाने के बाद अपने बच्चे का बारीकी से देखभाल करना पड़ेगा। 5 साल का बच्चा है, ध्यान रखे वो अपने पेन पेंसिल स्केच पेन्स कुछ भी अपने कान में ना डाले, और जब उसको आप शावर दे रहे हो मेक श्योर कि उसका कान के अंदर कॉटन हो या कान में ईयर मफ लगाया गया हो और उसके कान के अंदर पानी ना जाए। विगरस एक्टिविटी, एकदम उछलना कूदना खेलना फांदना, ये सबसे परे रहे, और इजी पैलेटेबल डाइट, मतलब आसानी से चबाने वाला डाइट, नॉट टू हार्ड मील्स, राइट, वो हमने पहले भी जिक्र किया था, वो दे। और अगर छोटा सा भी, थोड़े से हिसाब से भी अगर ब्लीडिंग हो, छोटा सा भी ब्लीडिंग हो, थोड़ा सा एक ड्रॉप ही सही ब्लड अगर आपको अपने बेटे के कान से बाहर आता नजर आ रहा हो और ड्रेसिंग करने के बावजूद भी वो नहीं रुक रहा हो, तो प्लीज उसे हॉस्पिटल में लेके आए। और अगर बच्चा बोल रहा हो कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है कान में, रोना हो हर दिन का उसका, तो भी उसे हॉस्पिटल में लेके आए। बुक एन अपॉइंटमेंट, जितनी जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटल में लेके आए। आई थिंक माय व्यूअर्स might have understood how to take up this role play. Do you want to add anything? That's fine, I guess. Yes, sir. All right. Okay guys, so this was a very short role play. I know it is pretty long, but this is just to make you understand, especially for those guys who are not familiar with English language and would like to get an explanation in Hindi. We have done this role play for you, and I'm sure that you are going to understand it so nicely. अगली बार अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी रोल प्ले के बारे में डाउट हो ऑफ ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट वर्जन 2.0, प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन डाउन में नोट कीजिए, प्लीज कमेंट करिए। हम वो रोल प्ले आपके लिए जरूर प्रेजेंट करेंगे कि किस हिसाब से आपको बात करनी है। आप अपनी भाषा में उसे लिखिए और उसके बाद आसानी से यू ट्राई टू ट्रांसलेट टू इंग्लिश एंड स्पीक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। Thank you.